حیدر نگار سے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولنے کو تیار نہیں تھی۔ نیہا کے نکاح کی رسم شروع ہونے کی وجہ سے حیدر کو نیچے آنا پڑا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اسے ریڈ لہنگے میں مبلس وہ سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ حیدر کے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے یوں سجا سنورا دیکھ رہا تھا۔ وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی اور اس نے اسے خود سے ناراض کر دیا تھا۔ حیدر سے اس کے سہانے روپ سے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں نگار اس کی یہ بے باکی دیکھ کر پزل ہو رہی تھی، وہیں باقی سب لوگ حیدر کی عشق دیوانگی پر مسکرا دیے تھے۔ نگار سے اس کی محبت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ حیدر نے بنا کوئی اس کے اتنے سال انتظار کیا تھا، اور اب وہ کیسے نہ سرعام اپنی اس محبت کا اظہار کرتا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نگار سب سے خفا سی الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جب حمزہ کا گلا کھنکارتا اس کے قریب آیا تھا۔ نہیں، نگار اس کے پوچھنے کے ساتھ ہی پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، جبکہ اس کے ڈور ٹوک انکار پر حمزہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ بھابھی، میں نے تو آپ کی نرم مزاجی کی بہت سی مثالیں سنی ہیں۔ آپ اب پلیز اپنے اکلوتے دیور کے ساتھ یہ ظلم تو مت کریں۔ ایک بار اس مسکین انسان کی بات سن لیں، پھر جو سزا دینی ہوگی دیجیے گا۔ جنید اس کے قریب ہاتھ باندھے کھڑا مؤدبانہ انداز میں بولتا۔ نگار کے ہونٹوں پر خفگی کے باوجود مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ یہاں کے مرد جس طرح عورتوں کو عزت دیتے تھے، نگار کے دل میں ان کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ساتھ ہی حیدر کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہی تھا جس کی وجہ سے وہ اسے یہ مقام ملا تھا، اسے زندگی گزارنے کی خوبصورت وجہ دے دی تھی۔ وہ حیدر سے صرف اس وجہ سے خفا تھی کہ اس نے اتنے ٹائم سے ساتھ ہونے کے باوجود اسے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا، اور اتنا ٹائم صرف اسی گلٹ میں نکال گئی تھی کہ اسے ونی کی صورت حیدر کی سر پر مسلط کیا گیا تھا۔ سب لوگ اس بات سے واقف تھے، ایک وہی سب کے آگے بیوقوف بن کر پھرتی رہی تھی۔ کیا اب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اسے مسکراتے دیکھ کر جنید کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، ورنہ اسے مزید خفا کرنے پر حیدر نے بنا کچھ پوچھے اسے گولی سے اڑا دینا تھا۔ بیٹھ سکتے ہیں، نگار نے احسان عظیم کرتے اسے اجازت دے دی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ سارا میرا پلان تھا، اس میں ہم نے بعد میں ادا سائی کو داخل کیا، کیونکہ ان کے بغیر اس پلان کو کامیاب ہو پانا ناممکن تھا۔ آج سے 6 سال پہلے آپ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی وہ آپ سے شدید محبت میں مطبع ہو چکے تھے۔ آپ کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ آپ کے بغیر ان کو اپنی زندگی ادھوری لگنے لگتی تھی۔ ان کی سوشل سرکل میں لڑکیاں ان کی دیوانی تھی، ان سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر وہ صرف اور صرف آپ کے دیوانے تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے رشتہ بھی بھجوایا تھا، جس کے بعد دونوں خاندان کے درمیان اصل دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کے فادر حمید مکسی نے اس بات کو انا کا مسئلہ بناتے بہت فساد کھڑا کیا تھا۔ ایک دو بار تو انہوں نے ادا سائی پر حملہ بھی کروایا تھا۔ ان کی اتنی نفرت بھی ادا سائی کے دل میں آپ کے لیے محبت کم نہیں کر پائی تھی۔ ادا سائی نے اسی سلسلے میں آپ کے وڈیرے ارشدین مکسی سے بھی بات کی تھی۔ انہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ ارشدین مکسی اپنے دادا اور چچا کی طرح نہیں تھے۔ وہ خود بھی آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ آپ کے فادر ان کا فیصلہ سنتے ہی انکار کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے مل کر یہ بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کے والد کی گاڑی پر فائرنگ کروائی تھی، اس طرح کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ حکم بھی ادا سائی کا تھا، ورنہ جو قہر انہوں نے اپنے مزاروں پر ڈھا رکھا ہے، میرا تو دل چاہا تھا لگے ہاتھوں سب غریب مسکین لوگوں کو ان سے چھٹکارا دلوا دوں۔ خیر، میرے حملہ کرنے کے دوسرے ہی دن انہوں نے میری گاڑی پر اپنے آدمیوں سے جان لیوا حملہ کرواتے 20 کے قریب گولیاں چلائی تھیں، اور ساتھ ہی میری گاڑی کو آگ لگا دی تھی تاکہ میں کسی بھی قیمت پر بچ نہ پاؤں۔ خیر، میں گاڑی میں ہوتا تو کچھ ہوتا مجھے۔ اس حادثے کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو گیا تھا، میں جس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ میرے اس جینیس پن کے بعد آپ دونوں کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ آپ
اپنے اس معصوم اور پیارے سے دیور سے ناراض ہونے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے میٹھی کھیر بنا کر دیں۔ اتنا اچھا دیور قسمت والوں کو ملتا ہے۔ جنید پوری بات بتاتا آخر میں اپنے کالر فخریہ انداز میں اٹھاتا بولا تھا، اگر یہ ساری کہانی آپ کے ادا سائی مجھے پہلے سنا دیتے تو کیا جاتا ان کا۔ نگار نے اب کی بار اس سے نرم لہجہ اختیار کیا تھا۔ ادا سائی کو اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ ان سے خفا ہو جائیں گی، اسی لیے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ سب کو ڈرا کر رکھنے والے اس خاندان کے سب سے ہونہار اور غسیلے سپوت صرف آپ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ادا سائی کو منانا بالکل بھی نہیں آتا۔ کوئی ان سے خفا ہو جائے تو ان کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے، یا تو خود بھی ان سے خفا ہو جاتے ہیں یا پھر مزید ڈانٹ دیتے ہیں۔ اب اصل مزہ تو تب آئے گا جب وہ آپ کو منائیں گے، کیونکہ اب وہ پہلے والے حربے تو آپ پر کسی صورت نہیں آزمائیں گے۔ ویسے اس دیور کا پرخلوص مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اتنی جلدی راضی مت ہوئیے گا ان سے۔ ہم سب کو لٹو کی طرح گھما کر رکھا ہوا ہے انہوں نے، ذرا آپ بھی تو ہمارے کوئی بدلے لیں ان سے۔ جنید کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حیدر نے پیچھے سے آ کر اس کا کان اتنی زور سے مروڑا تھا کہ آس پاس کے ٹیبلز پر بھی اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ کیا بول رہے ہو میری بیوی کو میرے خلاف؟ حیدر کو وہاں آتا دیکھ کر نگار کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نگار نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے بمشکل اس سے نظریں پھیری تھیں۔ حیدر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، جس پر نگار اپنی ناراضگی برقرار رکھتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں میری بیوی کو میرے خلاف؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں نظر آ رہی ہے۔ حیدر اس کے یوں اٹھ کر جانے پر جنید کو کڑے تیوریوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، ہم دونوں کی دوستی ہو چکی ہے، بھابھی کو شاید آپ کا میرے پہ کیا جانے والا تشدد برا لگ گیا ہے۔ حیدر نے اپنا لال پڑتا کان سہلاتے جواب دیا تھا، اپنی بکواس کو ذرا کنٹرول میں رکھو، وہ پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے، اگر مزید ہوئی تو میں نے خود تمہیں اٹھا کر حمید میکسی کے آگے پھینک آنا ہے۔ حیدر کی نگاہیں پوری طرح سے نگار پر جمی ہوئی تھیں، جو اب باقی سبھی گھر والوں کے ساتھ صلح کر چکی تھی سوائے اس کے، جبکہ اس کی دھمکی سن کر حیدر کہکا لگائے بنا نہیں رہ پایا تھا اور اسے نگار کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ان کی یہ خوبصورت جوڑی سلامت رکھنے کی دعا کر گیا تھا۔ سب خواتین کے بیچ کھڑی نگار نے حیدر کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈنا چاہا تھا، جو اسے فون پر بات کرتا باہر کی جانب جاتا دکھائی دیا تھا۔ اس سے شدید خفا ہو جانے کے باوجود نگار اس کو اپنے آس پاس دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر نگار کو محفل کا رنگ پھیکا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ اردشیر سمارا کو فوراً ہسپتال لے کر آیا تھا، جہاں اس کا فوری ٹریٹمنٹ کر کے گولی تو نکال دی گئی تھی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اردشیر کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی، مگر اردشیر کے دل کو کسی طور چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد سمارا کو ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ بخش میکسی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے والی بات نے ان کے دماغ پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے۔ نگہت بیگم اور سمارا کے گھر والوں تک اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ سمارا کے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ اردشیر سمارا کے روم کے باہر کھڑا تھا جب اس کی نظر کوارٹر کے دروازے کی جانب اٹھی تھی اور پھر واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہاں سے چل کر آتی اپنی ماں کو آج اتنے سال بعد وہ اپنے سامنے دیکھا اردشیر کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں۔ اسے وہ ایک پل یاد آیا تھا جب اس نے اپنی زندگی کی خوشی اور غم کے لمحات میں اپنی ماں کو اپنے قریب دیکھنا چاہا تھا، ان کی مہربان گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا کی گرمی کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ بچپن میں وہ کتنا تڑپتا تھا اپنی ماں کے لیے، مگر اسے اپنی ماں کے حوالے سے جو شرمناک سچ بتایا گیا تھا وہ جاننے کے بعد اردشیر کو ماں کے نام سے ہی شدید نفرت ہو گئی تھی۔ دنیا کی ہر عورت میں اپنی ماں کا حق تلاش تھا، وہ ہر ایک سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر اتنے سالوں بعد ان کا سچ جان کر اردشیر کا اپنے آپ سب
से ज़्यादा गुनहगार लगने लगा था। उसके अंदर का गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। उसका गुस्सा और अक्कड़, वो अदला बख्श मक्सी के पोते होने का गरूर धरे का धरा रह गया था। निगहत बेगम को अपने करीब आता देखकर वो इनकी जानिब नहीं बढ़ पाया था। उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया था और ना ही वो खुद को इस काबिल समझ पा रहा था। मेरा बच्चा, क्या आप भी नफरत करते हो अपनी माँ से? उसके मुकाबले पहुंचने निगहत बेगम भीगे लहजे में बोलती उसे नदामत और अजियत की तहा गहराइयों में धकेल गई थी। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ा था और उनके आंसू पूछता इन्हें अपने सीने में भेज गया था। निगहत बेगम अब इतने सालों का इंतजार आज खत्म हो जाने पर फूट फूट कर रो दी थी। उन्होंने उस सब के लिए कितना इंतज़ार किया था। वो अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहती थी। आज उनकी मांगी गई सारी दुआएं पूरी हो गई थीं। उनकी सारी अज़ियतें और तकलीफ़ें अपने बेटे को गले लगाते ही धुल गई थीं। कितनी ही देर वो ऐसे ही इन्हें अपने सीने से लगा इनकी पेशानी चूमता रहा था। उसे अपने इस नाफरमान और नालायक बेटे को माफ़ कर दें। इतने साल आपको इतनी इज़्ज़त में रखा, आपने कई बार कोशिश की, मगर मैंने हर बार अर्दशीर की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। निगहत बेगम निगहत बेगम नफ़ी में सर हिलाती उसके चेहरे के एक एक नक्कुश को चूमने लगी थी। उनकी ममता की प्यास बुझ रही थी। उनका कांपता वजूद और भीगता चेहरा बता रहा था कि उन्होंने जुदाई के इतने साल किस कदर अजियत में गुजारे थे। नहीं बेटा, आपको कोई कसूर नहीं है। आप खुद को तकलीफ मत दें। आपका किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। आप खुद को तकलीफ मत दें। आपका किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। एक 5 साल का बच्चा इसी की बात मानेगा ना, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की। आपको जो मेरे बारे में बताया गया उस पर आपका यकीन करना एक फितरी अमल था। आप प्लीज़ इसके लिए खुद को इल्ज़ाम मत दें और इस तलख माजी को भूल जाएं। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ, जिसमें पिछले दिनों की परछाई तक ना हो। स्मारा कैसी है अब? क्या मैं अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ? निगहत बेगम की बात मोहब्बत से सुनते आखिर में स्मारा के जिक्र पर अर्दशीर की भौहें गुस्से से तन गई थी, जो निगहत बेगम ने एक सेकंड में नोट किया था। क्या हुआ? आप नाराज़ हो स्मारा से? निगहत बेगम को सलमा इन दोनों के हर रोज़ होते लड़ाई झगड़ों से आगाह कर चुकी थी। वो अर्दशीर के एक्सप्रेशन से ही समझ गई थी कि फिर से कोई गड़बड़ हुई है। आपकी बहू मेरी कोई बात नहीं सुनती, हमेशा मेरे कहे के खिलाफ जाना है उसने। उसकी आदत बन चुकी है। उसकी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ, मगर आज उसने वहाँ जाकर जो गलती की वो कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसे होश आ गया है, आप जाकर मिल लें उससे। अर्दशीर की आंखों में स्मारा के लिए मोहब्बत और गुस्सा एक साथ देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। उन्हें बेख्तियार अर्दशीर के बाबा की याद आई थी, जो ऐसी ही बेपनाह मोहब्बत तो करते थे, मगर इनके अंदर दौड़ता वडेरों का खून जब जोश मारता था तो वो भी ऐसी सख्त दिल हो जाया करते थे। ओके ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं अपना बेटा इस नाराज़गी में हक बजा लगा था, इसलिए उसे फोर्स किए बगैर वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ से स्मारा के पेरेंट्स उसे मिलकर निकल रहे थे। मामा, स्मारा जो दरवाज़ा खुलने पर अर्दशीर की मुंतज़िर थी, निगहत बेगम को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उनकी यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि उनके और अर्दशीर के दरमियान सब ठीक हो चुका है। कैसी है मेरी गुड़िया? निगहत बेगम बेड पर तकियों के सहारे बैठी स्मारा के करीब आते इसकी पेशानी चूमते बोली थी, आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। आप जानती नहीं हैं आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ मैं। स्मारा उनका हाथ थामकर होठों से लगाते हुए बोली थी। उसके दाएं बाजू पर गोली लगी थी, मगर गोली छूकर गुजर जाने से ज़्यादा गहरा जख्म नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। मेरा बेटा मुझे वापस लौटाने के लिए शुक्रिया। निगहत बेगम उसका हाथ थामती मशकूर लहजे में बोली थी, मगर आपका वो अकड़ू वडेरा बेटा तो मुझसे ज़्यादा सख्त नाराज़ है। एक बार मुझे मिलने नहीं आया है। ये बात करते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। तुम्हें उस जगह गोलियों के बीच खतरे में देखकर उसके दिल पर जो बीती है, तुम्हें उस जगह गोलियों की
کے बीच खतरे में देखकर उसके दिल पर जो बीती है अभी तक भूल नहीं पा रहा। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी, मगर ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो फिक्र और मोहब्बत तुम्हारे लिए अपने बेटी की आंखों में देखी है, मुझे पूरा यकीन है ज़्यादा देर तुमसे खफा नहीं रह पाएगा। निगत बेगम ने उसके आंसू साफ करते हुए तसल्ली दी थी, मगर समारा उसके गुस्से की शिद्दत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि उसे ये नाराज़गी हर तरह से महंगी पड़ने वाली थी। उसका वडेरा साईं उसे इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं था। समारा उसके गुस्से भरे पल याद करती जी जान से लहज उठी थी। इसका दिल आने वाले वक्त का सोचकर जोर से धड़क उठा था। साईं कहाँ गए हैं? निगार को उसके बाद हैदर कहीं नज़र नहीं आया था, इसलिए वो कब से बेचैनी का शिकार होती। आखिरकार हैदर से बाहर से आते हमजा से पूछ बैठी थी, वो तो नीचे बाबा और बाकी सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अदा साईं को बुलाना है क्या? हमजा उसकी जर्द सूरत देखता जल्दी से बोला था, वो देखें अदा साईं आ भी गए हैं, आपको भाभी याद कर रही थी। हैदर को फ़ोन पर बात करते सीढ़ियाँ चढ़ता देखकर हमजा ने जल्दी से उसकी जानिब इशारा किया था, जबकि निगार हमजा की इन जल्दबाजियों पर उसे घूर कर रह गई थी। क्या हुआ? हैदर ने फ़ोन कान से हटाए बगैर सवालिया नज़रों से उन दोनों की जानिब देखा था। अदा साईं आपकी बेगम आपको याद कर रही थी। हमजा अपना काम करता वहाँ से निकल गया था। जी बोलें, क्या कहना है आपको? हैदर ने उसके दिलफरेब सरापे पर पुरशौक निगाहों से देखते उससे पूछा था, जबकि निगार उसकी तवज्जो खुद से ज़्यादा मोबाइल पर देखते खफकी का शिकार हुई थी। मुझे आपको ये बताना था कि आज रात मैं भी बाकी सब कज़न्स के साथ नेहा के कमरे में ही रहूँगी। निगार जो पहले नेहा को मना कर चुकी थी, अब हैदर का खुद को नज़रअंदाज करना इतना बुरा लगा था कि वो पल भर में ही फैसला कर गई थी। ओके, हैदर उसे नॉर्मल लहजे में जवाब देता उसके पास से गुजरते आगे बढ़ गया था, जबकि उसकी इतनी आसानी से मान जाने पर निगाह ने आंखें फाड़े हैरत व बेयकीनी से उसकी पुश्त को घूरा था। हाँ हुमा, तुम जल्दी पहुँचो, सुबह से तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। किसी को इस तरह इंतज़ार की सूली पर लटकाना मुकाबले पर बहुत जानलेवा होता है। दूर जाते हैदर के फ़ोन पर बोलने जाने वाले लफ्ज़ निगार के कानों से टकराते उसे अंदर से जलाकर खाक कर गए थे। वो मुठ्ठियाँ भेजती कितनी देर वहाँ खड़ी रही थी। हैदर खान इतना बड़ा धोखा। निगार कुछ देर वहीं खड़ी गुस्से से जलती बुंदी नेहा के रूम में जाने के बजाय अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। जोरदार आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सामने ही वो से सोफे पर बैठा फ़ोन कान से लगाए मुस्कुराते नज़र आया था। वो मुस्कुराहट फ़ोन पर मौजूद इंसान के लिए थी या किसी और वजह से वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। अरे आप आ गई, आपने तो कहा था कि आज आप नेहा के रूम में रहेंगी। हैदर फ़ोन कान से हटा था, उसकी लिबास की तरह लाल चेहरा देखकर मुश्किल मुस्कुराहट छुपाया बोला, मैं अपना ड्रेस चेंज करने आई हूँ। निगार फौरन बहाना बनाती अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। अलमारी के पट खोलते वो उसके मजीद फ़ोन पर बात करने की मुंतज़िर थी, मगर उसे खामोश होता देखकर वो अलमारी में कपड़े इधर उधर करने लगी थी। क्या हुआ, आपको ड्रेस नहीं मिल रहा? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हैदर उसकी कफियत से महफूज होता उसके लाल पड़ते रुखसार देखने के लिए उसके करीब आया था। नहीं शुक्रिया, मिल गया है। निगार उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़े होने पर जल्दबाजी में बिना ध्यान दिए सामने लटकी ब्लैक कलर की नाइटी उतार चुकी थी, जो हैदर उसके आने से पहले हैंग कर चुका था। निगार उसके करीब से उठती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी, जब हैदर पहले ही उसका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आप मेरी इजाज़त के बगैर चेंज नहीं कर सकती। हैदर उसे हौले हौले से करीब लाता उसकी मनमोहनी सूरत को तकने लगा था। साईं, मेरा हाथ छोड़ें। निगार ने निगाहें झुकाए नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी, जबकि हैदर उसके यूं हाथ खींचने पर अब बिना उसे ज़रा सी भी मोहलत दिए अपने करीब खींच चुका था। निगाह सीधी उसके सीने से आ टकराई थी। बहुत आजमा लिया मेरे सब्र को माई लव, अब मजीद नहीं। हैदर ने हाथ बढ़ाते उसका सर पर अटका आंचल नीचे सरका दिया था, जो एक ही बार में कंधों से फिसलता नीचे जा गिरा था। निगार उसकी आंखों का रंग देखकर काम सी गई थी। इस शख्स की शिद्दतें बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। सही, आप छोड़ें मुझे और जाएं उसी लड़की के पास जिसके आने का इंतज़ार आपको सूली पर लटका रहा है। निगार को हैदर की मोहब्बत ने इतनी दलेरी बख्श दी थी कि वो अब इसके सामने खुलकर बोल पाती थी। हैदर उसका ये बदला रूप देखकर जी जान से निसार हुआ था। कौन सी लड़की? हैदर ने उसकी नथली को छूते खुमार आलूदा लहजे में पूछा था। साईं। निगार उसकी सांसों की तपिश अपने बेहद करीब महसूस करती उसका बाजू जगड़ गई थी।
जबकि हैदर अपने नाजुक निज़ाम बीवी का खौफ से कांपता वजूद देखकर बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू रखता पीछे हटा था। जो आंसू बहाती अपने गुलाबी पड़ते नाक के साथ उसे मजीद बहका रही थी। आप उस लड़की को क्यों बुला रहे हैं? निगार की सुई अभी तक हुमा पर ही अटकी हुई थी। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरा करीब आना उसे पसंद नहीं। तो फिर मैं भी किसी ऐसे इंसान का साथ चाहूँगा जो मुझसे शिद्दत भरी मोहब्बत करे जिसे हुमा मुझसे करती है। हैदर उसके दिलकश सरापे के वार ना सह पाते रुख मोड़ते हुए बोला था, जो अब बिना दुपट्टे के अपने वजूद की नुमायाँ होती रनाइयों के साथ उसके दिल पर बिजली बिजलियाँ गिरा रही थी। उसकी बात के जवाब में कुछ देर के लिए दूसरी जानिब खामोशी छा गई थी और फिर चंद सेकंड बाद पूरा कमरा निगार की सिसकियों से गूंज उठा था। निगार, आप रो क्यों रही हैं? हैदर को अंदाजा नहीं था कि निगार के मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार करवाने की खातिर बोला जाने वाला झूठ इतना भारी पड़ जाएगा। यहाँ बैठे और ये पानी पिए। हैदर उसे थाम कर सोफे पर बिठाता, उसके आंसू साफ करता, उसके होंठों से पानी का गिलास लगा गया था जो एक घूंट भरने के बाद निगार ने पीछे कर दिया था। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं साईं कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? आप जब निगाहों से ज़रा से ओझल होते हैं मेरा दिल दिल बेचैन हो उठता है। आपकी ज़रा सी खफगी मेरी जान निकाल देती है। आप मेरे लिए क्या है आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। आपने अगर मुझे छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो मैं मर जाऊंगी। आप सिर्फ मेरे हैं साईं, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। निगार रोती पलकती बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करती अपने सामने दो नुज़ुज़ बैठे हम हैदर के सीने से आ लगी थी, जबकि हैदर इसका इकरार सुनता खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था साईं की जान, मैं आपके अलावा किसी और लड़की की जानिब देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिस इंसान ने बिना मिले 6 साल आपकी मोहब्बत में गुजार दिया, आप सोचिए आप इतना टाइम आपके साथ रहने के बाद वो भला कैसे ऐसा कुछ कर सकता है। हुमा मेरी ज़िंदगी में ना कभी आई है और ना ही आइंदा कभी आ सकती है। मेरी ज़िंदगी निगार हैदर खान पर शुरू होकर निगार हैदर खान पर ही ख़त्म होती है। उसके यूं सिसक उठने पर हैदर की जान पर बन आई थी। उसे अपने सीने में भेजी बोलता वो निगार के दिल से बहुत भारी बोझ सरका गया था। आपने फिर क्यों कहा वो सब? निगार मुंह बसोड़ते भीगी आवाज़ में पूछती ने हैदर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेर गई थी। इसलिए था कि मेरी बीवी नेहा के रूम में जाने के बजाय मेरे पास आ जाए वो, और मुझ गरीब को ये भी पता चल जाए कि वो मुझसे इस इस कदर मोहब्बत करती है। हैदर अपनी जगह से उठता उसे अपने मुकाबले खड़ा कर गया था, जबकि उसकी सारी बात समझती निगार का चेहरा खफत के मारे लाल हुआ था। वो समझ गई थी कि वो उसके हाथों बुरी तरह बेवकूफ़ बन गई थी। आगे से हटे साईं, मुझे कपड़े तब्दील करने हैं। निगार उसे अपने मुकाबले दीवार से बने खड़े देखकर सर झुकाए बोली थी, यार ये साईं के साथ हैदर लगा दो तो क्या ही बात है। हैदर उसका रास्ता रोक के अपनी ख्वाहिश जाहिर करते बोला था, जबकि निगाह धक धक करते दिल के साथ हाथ में पकड़े कपड़ों पर गिरफ्त मजबूत कर गई थी। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ साईं? हैदर की पुरशौक लो देती निगाहों की ताब ना लाते निगार का जो वजूद धीरे धीरे लहजने लगा था, जैसे सब बीवियां अपने शौहरों को बुलाती हैं। हैदर हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगे गजरे फूल फूल निकाल चुका था। निगार की उठती गिरती पलकों का रक्त उसके दीवाना बना रहा था। साईं मुझे जाने दे। निगार उसकी बढ़ती शौकियों पर घबरा कर उसे एक तरफ धकेलती वहां से निकल गई थी। ओके, मेरी पसंद का ड्रेस पहनकर मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा। हैदर उसकी बात पर वॉशरूम की जानिब बढ़ती निगार ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़े लिबास की जानिब देखा, उसका चेहरा हया के मारे सुर्ख खून छिलकाने लगा था। उसके हाथ में स्लीवलेस सिल्क की नाटी थी। निगाह ने एक सेकंड की भी देर किए बिना उसे किसी अछूत शय की तरह सोफे पर उछाल दिया था। उसके जवाब में हैदर का छत पाड़ कहकर रूम की फिजाओं को मुअत्तर करता उसे मजीद खौद में समेटने पर मजबूर कर गया था। क्या हुआ, चेंज नहीं करेंगी? हैदर उसके करीब पहुंचता, उसके कान की लू पर अपने लब रखता अपने दिल को सुकून बख्श किया था। आप बहुत बुरे हैं साईं। हैदर के सीने पर दोनों हथेलियां जमाकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करते निगार उसकी जरत से खींचने पर उसके सीने से आन टकराई थी। एक बार मौका तो दें, आपके सारे शिकवे ख़त्म कर देंगे। हैदर उसके कानों से एयर रिंग उतारता उस पर लब रखता खुमार आलूद
लहजे में बोलता आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुर्बत में डूबने लगा था। मुझे जाना है। निगार से खड़ा हो पाना नामुमकिन हुआ था। हैदर की जुसातें उसकी जान निकाल रही थी। एक बार इन नाजुक पंखड़ियों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। हैदर उसके कंपकपाते होंठों पर उंगली फेरते बज़ेद लहजे में बोला था, हैदर साईं आप। निगार अभी इतना ही बोल पाई थी कि हैदर उस इन लहजते गुलाबी होंठों पर झुकता उस पर अपने मोहब्बत की शिद्दतें लुटाता चला गया था। निगार उसके संभल पर जी जान से कांप उठी थी। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती, हैदर से अपनी बाहों में उठाता उसके होंठों को आज़ादी बशकता बेड की जानिब बढ़ गया था। निगार उसकी बाहों में सिमटी उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती अपने रब का शुक्र बजा लाई थी, जिसने उसे मगसी हवेली की तरीक़ों से निकाल कर हैदर खान जैसा हमसफ़र बख्शा था, जिसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इसी का कब्ज़ा था। हैदर की प्यार भरी सरगोशियाँ और इस हर पल बढ़ती शोख गुस्ताखियों पर वो उसी के चौड़े सीने पर में पनाह तलाश करती। हैदर के होंठों पर भरपूर मुस्कुराहट बखेर गई थी। वो अपनी मुतहद जान को अपनी बाहों में समेटता अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन पलों को जीने लगा था। समारा हॉस्पिटल से हवेली शिफ्ट हो चुकी थी। इसकी तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। बाजू का बैंडेज भी बस उतरने वाला था, मगर वो उस दौरान अर्दशेर का मुंह ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो उसके करीब आता ही नहीं था। जब वो सो जाती तो फिर फुल टाइम उसके पास बैठा रहता था, मगर इस बात से उससे बात ना करने की तो जैसे उसने कसम खा रखी थी। समारा उसकी नाराज़गी पर परेशान होकर रह गई थी। वो जानती थी कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर वो संगदिल शख्स उसे गलती से कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा दे चुका था, खुद से इतने दिन दूर रख के। निगत बेगम भी हवेली वापस आ चुकी थी, जहाँ बाकी सब अफराद समेत अल्लाह बख्श मक्सी ने भी उनसे माफ़ी मांगी थी। उनकी हालत के पेश नज़र निगत बेगम ने इनकी हर ज़्यादती बुलाकर इन्हें दिल से माफ़ कर दिया था। वो जानती थी जब तक वो इन्हें माफ़ नहीं करेंगी, अर्दशेर भी इन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। वो अब अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कोई अधूरापन नहीं देखना चाहती थी। अर्दशेर ने हवेली के साथ साथ अपने इलाके का निज़ाम भी बिल्कुल बदल कर रख दिया था। मीज़ारों से छीनी उनकी सारी ज़मीनें इन्हें वापस कर दी गई थी। बच्चियों की तालीम के अर्दशेर ने वहाँ स्कूल की तामीर शुरू करवा दी थी। पंचायत के फरसुदा असूलों को ख़त्म करके औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ देने का फ़ैसला किया गया था। जैसा कुरान और सुन्नत में हुक्म दिया गया है, औरत की बिना इजाज़त शादी करवाने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर की गई थी। अर्दशेर ये सब मामला निपटाते इस कदर मसरूफ़ रहा था कि उससे हमारा पूरी तरह नज़रअंदाज हो गई थी, मगर अपनी जान खतरे में डालकर जो गलती उसने की थी, वो उसे इस बात की इतनी सज़ा देने पर खुद को हक बजा समझता था। हवेली का माहौल अब काफ़ी खुशगवार रहने लगा था। ना सिर्फ सब शौहर अपनी बीवियों को इज़्ज़त देने लगे थे, बल्कि अल्लाबख्श मक्सी का रवैया भी अब ख़वातीन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। समारा ने बहुत मुश्किलों से ही सही, मगर काफ़ी हद तक उनके दिमाग से पुरानी रवायतों को निकाल फेंका था। हवेली में सब कुछ ठीक हो चुका था। जिस काम के लिए वो आई थी वो हो चुका था, मगर अर्दशेर के हवाले से उसके दिल की बेचैनी ख़त्म नहीं हो पाई थी। मामा, अद्दा, दादा साईं, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। समारा ड्राइंग रूम में बैठे अल्लाबख्श मक्सी और निगत बेगम को मुखातिब करते हुए बोली। वहाँ कुछ देर पहले आकर बैठते अर्दशेर मक्सी को वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी थी, जो सोफ़े की पुश्त से सर अटकाए आंखें मूंदे किन अखियों से उसकी जानिब देखती समारा को वो काफ़ी थका थका लगा था। समारा की आवाज़ पर भी उसने आंखें नहीं खोली थी। क्या हुआ मेरी धी, कोई परेशानी है? अल्लाबख्श मक्सी समेत घर के सभी अफराद ही इन दोनों के बीच चलती नाराज़गी से बाखबर थे। जी दादा साईं, मैं वापस कराची जाना चाहती हूँ। यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो अब हो चुका है। इतने टाइम से मेरी एनजीओ का भी हर्ज हो चुका है। बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, सलमा अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अब इस हवेली में तो किसी को मेरी ज़रूरत तो है ही नहीं। समारा दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ती ये लफ्ज़ अदा करती अंदर से खौफजदा भी थी। बेटा, आपका यही घर है, आपको अब यहीं रहना है। अगर आप कराची जाकर एनजीओ का कोई काम निपटाना चाहती हैं तो वहाँ पर भी अर्दशेर का घर मौजूद है, आप वहाँ जाकर रह सकती हैं। निगत बेगम इन दोनों के बीच की बदमज़गी बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, आई एम सॉरी मामा, मगर मुझे जाना है, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। समारा उनको दो टूक जवाब देती वापस पलट गई थी। रुको,
अर्दशीर की भारी गंभीर आवाज़ में बोले जाने वाले लफ्ज़ उसके कदम वहीं जकड़ लिए थे। वो वहीं खड़ी थी जब अर्दशीर अपनी जगह से उठता उसके करीब आया था। अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से बाहर कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अर्दशेर उसे लाल आंखों से घूरता आहिस्ता आवाज में कहता वहां से निकलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि स्मारा तो उसके लफ्जों पर ही कितनी देर शौक में खड़ी रही थी। वो उसे क्या बोल कर गया था। अगले ही लम्हे वो दांत पीसती अर्दशेर के कमरे की जानिब बढ़ी थी। भागकर उसके पीछे जाते वो उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई थी। आप मुझे वो सब कैसे कह सकते हैं? स्मारा उसके मुकाबले आती उसका रास्ता रोकती गुस्से से बोली थी। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कुछ भी कह सकता हूँ तुम्हें। आइंदा इस लहजे में बात मत करना मुझसे। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। अर्दशेर उसे अपने आगे से हटाता टेबल की जाने बढ़ गया था जहाँ उसके सिरकट रखे गए थे, जबकि स्मारा उसका ये रूप देखकर अपनी जगह हक्का बक्का सी अपनी जगह खड़ी थी। जो निज़ाम हवेली से ख़त्म करने के लिए उसने इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की थी, अब वही खुद अपना रहा था। स्मारा के लिए यकीन करना मुश्किल हुआ था। यहाँ का वडेरा होने के बावजूद हमेशा वो उसे अपने बराबर का मकाम देता आया था। फिर अचानक उसे क्या हो गया था? मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। स्मारा उसके हद दर्जे संजीदा अंदाज से खाइफ होती धीमे से बोली थी। वो उससे नाराज था। वो जानती थी कि वो गुस्से का कितना तेज है, मगर मेरे नज़दीक अब मेरी बीवी का मकाम यही है। अगर इस तरह रहना चाहती हो तो ठीक, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो मेरी जिंदगी से। अर्दशा सिरकट होंठों में दबाता उसकी तरफ से रुख फेर गया था, जो उस वक्त ब्लैक ड्रेस में मौजूद उसके दिल पर हशर बर्पा कर रही थी। मगर इस लड़की की अकल ठिकाने लगाना भी वो फिलहाल ज़रूरी समझता था। वडेरा अर्दशे नवाज मक्सी, कम से कम मेरे सामने अपना ये वडेरापन झाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपकी रया नहीं हूँ जो आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त करूँ। स्मारा ने उसके हाथ से सिरकट लेते टेबल पर रखे पानी के गिलास में डाल दिया था। अर्दशेर ने उसे सख्त निगाहों से घूते सिरकट की डब्बियाँ उठानी चाही थी, मगर इससे पहले स्मारा ने जल्दी से झुकते सिरकट की पूरी डब्बी उठाकर जग में डाल दी थी। ये क्या बदतमीजी है? अर्दशेर ने उसे गुस्से से घूरा था जब स्मारा उसकी शर्ट सीने से मुट्ठियों में दबोचते उसे अपने करीब खींचते बिना उससे डरे उसकी आंखों में झांकने लगी थी, जहाँ शदीद नाराजगी के पीछे उसे मोहब्बत का जहाँ आबाद दिखाई दिया था। अब आप हाथ नहीं लगाएंगे इन्हें। अगर यहाँ के वडेरे होकर सब पर हुक्म चला सकते हैं तो मैं भी यहाँ की वडेरनी होने के नाते आपको हुक्म दे सकती हूँ, जो आपको हर हाल में मानना पड़ेगा। स्मारा उसके नहायत करीब आकर हुई थी, जबकि अर्दशेर बिना उसे थामे खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। उसे इस वक्त सिरकट दूर करने पर गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि जिस लड़की की गुर्बत का नशा बहलाने के लिए वो सिरकट के नशे का आदी हुआ था, उसे वो अब वापस मिल चुका था। भला इस लड़की की महकती गुर्बत में वो उसे बाकी किसी नशे का होश रहता ही कब था? और वो वडेरा साईं, अभी आपने अपना वडेरापन झाड़ते भी मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को बोला है। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही माफ़ करूंगी। स्मारा ये लफ्ज़ अदा करती से दूर होने ही वाली थी जब अर्दशेर उसकी कमर में बाजू हायल करके उसके ऊपर झुकता उसकी सांसें कैद कर गया था। स्मारा उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अर्दशेर के जुनूनी लहमे लम्स पर उसकी आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक फैल गई थीं। अर्दशेर के सीने पर गिरफ्त मजबूत करते उसने उसे दूर धकेलना चाहा था, जिसका अर्दशेर पर कोई असर नहीं हुआ था। वो न जाने कब तक ऐसे ही उस पर अपना गुस्सा, जुनून और मोहब्बत निडालता रहता, जब दरवाजे पर दस्तक ने उसे होश दिलाया था। उस मारा की गैर होती हालत देखकर उसके लहजते कांपते होंठों को आज़ादी बख्शता पीछे हुआ था, मगर उसे अपने हालत से आज़ाद नहीं किया था। दरवाजे पर उसकी दस्तक अभी भी जारी थी। स्मारा ने दिल की एक बेकाबू होती धड़कनों पर मुश्किल काबू पाते उस बेरहम शख्स के हारे से दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मगर उस वक्त जिस तरह हमीद मक्सी ने मुझे ब्लैकमेल किया, मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। आई एम वेरी सॉरी। अगर उस दिन मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। स्मारा ने निगाहें झुकाए अपनी गलती का इकरार किया था। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मुझे तुम्हें वहाँ देखकर मुझ पर क्या बीती थी।
शेर उसका आंसुओं से भीगा चेहरा हाथों के प्याले में भरते नरम लहजे में बोला था। वो उसे इसकी गलती की सज़ा दे चुका था। उसे एहसास होता देखकर वो अब मज़ीद अपने दिल को पत्थर नहीं रख पाया था। आइंदा आपकी हर बात मानूंगी कसम से, जो आप कहेंगे वो सब करूंगी। आप कहेंगे तो इस हवेली से तो क्या, कमरे से बाहर तो एक कदम नहीं निकालूंगी, मगर आप भी वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आइंदा कभी यूं मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, खुद से दूर नहीं करेंगे मुझे। स्मारा अर्धशेर के गले में बाहें डाले हुए बोली थी, जैसे उसके छूट जाने का खौफ हो, जबकि अर्धशेर उसके इस मासूमियत भरे अंदाज पर जी जान से कुर्बान होता उसे अपने सीने में भेज गया था। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। अर्धशेर उसके बालों पर होंठ रखता मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। स्मारा का क्या जाने वाला इकरार उसे दिलो जान से सरशार कर गया था। वो इतने दिनों से इसीलिए स्मारा को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसके करीब आती ही वो अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाएगा। मेरी हर बात मानने का मतलब मेरी हर बात माननी है, राइट? अर्दशी उसकी शरबती आंखों में देखते शोखी भरे लहजे में बोला था। क्या मतलब है आपका? स्मारा उसके लहजे में खतरे की घंटी महसूस करते उससे फ़ौरन दूर होना चाहा था, मगर इससे पहले ही अर्दशेर उसे अपने करीब कर चुका था। कहाँ जा रही हैं वर्डेनी साईं? इतने दिनों की जुदाई का हिसाब कौन देगा? अर्धशेर उसके बालों से कैंचा निकालता बहके बहके लहजे में बोलता उसे सर से पैर तक लाल कर गया था। वडेरा साईं, आपको कोई बाहर बुला रहा है। स्मारन ने उसकी गुस्ताखियों पर बंद बांधना चाहा था। जो भी है वापस चला जाए। अर्धशेर उसके बालों में मुंह छुपाता उसे पूरी तरह अपनी ज़ात में गुम कर गया था। जुदाई की लंबी मुसाफतें तय करते आखिरकार इन्हें एक दूसरे की कुर्बतें मैसर आ गई थी। स्मारा उसकी फरकतों पर शर्मा कर खुद को उसकी मजबूत पनाहों के सुपुर्द करती खूबसूरती से आंखें मूंद गई थी। मक्सी हवेली में अब सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। औरतों पर लटकती गुलामी की तलवार अर्धशेर ने उतार फेंकी थी। अब इन सब को भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल था। अर्धशेर ने माविश को सैफुल्ला के साथ रुखसत कर दिया था। वो दोनों उसके इस एहसान पर ज़िंदगी भर के लिए उसके मशकूर थे, जिसने इनके दिलों को बर्बाद होने से बचा लिया था। निगार अपने पापा की मौत का सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन यहाँ भी हैदर और उसके घर वालों ने उसे अपनी मोहब्बत की छाँव में छुपा लिया था। मक्सी हवेली में सभी हैदर से मिलकर और निगार की खुशहाल ज़िंदगी देखकर बहुत खुश थे। अलापाक मक्सी कई बार निगत बेगम से माफ़ी मांग चुके थे और निगत बेगम ने भी इनको सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। अलापाक मक्सी ने हर बात का इख्तियार अर्धशेर को दे दिया था। वो अब अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर गुजारना चाहते थे। स्मारा और अर्धशेर भी एक दूसरे को वापस पाकर बेपनाह खुश थे। इन्हें ना सिर्फ यह एक दूसरे का साथ मिल गया था, बल्कि वो हवेली और वहाँ के मज़ारों को वडेरना जुल्म और जाबिर निज़ाम से आज़ादी दिलवाने में कामयाब हो चुके थे। इनकी साफ और सच्ची नीयत ने इनकी ज़िंदगी की अज़ियतों को अफसुदगी में बदल दिया था। अब वो हमेशा होकर अपनी ज़िंदगी में आए हर एक तूफ़ान का ऐसे ही मुकाबला करने को तैयार थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे के लिए बेपनाह चाहत और यकीन था, जिसे वो अब जिंदगी भर साथ लेकर चलने वाले थे।